یہ ہے ایک خونی داستان جہاں ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آدم خور درندے جو انسان کے گوشت کے پیاسے ہیں، اور ایک شکاری جو اپنی جان پر کھیل کر ان درندوں سے ٹکراتا ہے۔ پیش ہے آدم خوروں کی وادی۔ رات کو ہم چھت پر بیٹھ کر سندر بن کے آدم خور شیرنیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میرا ارادہ نور دین کو ساتھ لے جانے کا تھا اور وہ خود بھی جانے کے لیے بے تاب تھا۔ آدھی رات تک ہمارا یہی موضوع رہا، پھر میں تو سو گیا مگر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن ہم نے جنگل جا کر ایک بڑے چیتل کا شکار کیا جس کو نور دین نے نشانہ بنایا۔ کمال کا نشانہ تھا اس کا، پورے جھنڈ میں اس نے درمیان سے اس چیتل کو مار گرایا تھا۔ جب ہم شکار لے کر واپس آئے تو دیکھا ماموں آئے ہوئے تھے، 2 اعلیٰ سرکاری آفیسر بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ صاحب لوگ یہاں شکار کھیلنے آئے تھے۔ ماموں کو آدم خور مگرمچھ اور نور دین کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ کیونکہ وہ بچپن سے نور دین کو جانتے تھے، اس لیے انہیں یقین نہ آیا کہ اس جیسا نوجوان اتنا ماہر شکاری بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات تھی، نور دین خوبرو، مضبوط اور نڈر جوان تھا، لہٰذا ماموں اور ان کے ساتھ آئے آفیسر کو اپنی کارکردگی اور نشانہ دکھانے کے لیے اس کو ان کے ساتھ پھر سے جنگل میں جانا پڑا۔ ان کے کہنے پر اس نے کئی جانور اور پرندوں کو ایک ایک گولی میں نشانہ بنا کر دکھایا۔ اس کی مہارت دیکھ کر ماموں تو مسرت سے سرشار ہو گئے، مگر گورے بڑے مکار تھے، یوں بھی انہیں ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں بندوق اچھی نہ لگتی تھی، لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر کی بے معنی باتیں شروع کر دیں۔ مگر نور دین بھی ایک زیرک نوجوان تھا، اس نے ولیم شکاری کا حوالہ دے کر کچھ ایسی چرب زبانی دکھائی کہ وہ سب اس کی باتیں کرنے لگے۔ گوروں کی ایک فطرت تھی، جب انہیں پتہ چلتا کہ کسی شکاری یا سپاہی کا استاد کوئی گورا ہے تو اس پر مراعات کے دروازے کھول دیتے، لہٰذا انور دین کو بھی شکاری لائسنس اور بندوق کی پیشکش ہو گئی۔ میں نے ماموں سے سندر بن کی 2 آدم خور شیرنیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جیک وہاں موجود ہے اور مجھے بھی وہاں بلایا گیا ہے، تو وہ بولے مجھے سب پتہ ہے، پہلے تمہیں دہلی آرمی کے ہیڈ کوارٹر جانا ہوگا، وہاں تمہیں خصوصی رائفل اور کارتوس ملیں گے، شارٹ گن کی گولیاں بھی وہاں سے مل جائیں گی، نور دین کے لیے اجازت نامہ بھی وہیں سے ملے گا۔ پھر اگلے دن فضل کو ماموں اور اس کے گروپ میں چھوڑ کر میں اور نور دین دہلی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سیالکوٹ سے دہلی اور دہلی سے کلکتہ تک ہم نے بذریعہ ٹرین سفر کرنا تھا۔ نور دین بہت خوش تھا، وہ پہلی دفعہ اپنے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ دہلی پہنچ کر ہم سیدھا ضلع مجسٹریٹ کے دفتر پہنچے، یہاں سے مجھے اپنے لیے ونچسٹر /500 کی رائفل اور اعلیٰ قسم کے کارتوس موصول ہوئے۔ آدم خور شیروں کو مارنے کا خصوصی اجازت نامہ جو میرے علاوہ نور دین کے لیے بھی تھا، یہاں سے ملا۔ اپنی بندوق میں نے نور دین کو سونپ دی، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو ہر ماہر شکاری کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر ہم ایک خوشگوار سفر طے کرنے کے بعد کلکتہ پہنچ گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سندر بن جو بنگال کا بدنام زمانہ تھا، کیا وہاں کوئی ایسا شکاری موجود نہیں تھا جو مجھے اتنی دور سے بلایا گیا؟ دراصل گوری سرکار کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جو آدم خور جتنا خطرناک ہوتا اتنے ہی نامور شکاری اسے مارنے کے لیے بلائے جاتے۔ بنگال کی ان آدم خور شیرنیوں کا ذکر جب جیک کے سامنے ہوا تھا تو اس نے میرے بارے میں بتایا تھا، لہٰذا وہ خود بھی وہاں چلا گیا اور مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ ویسے بھی سندر بن پورے ہندوستان کے سب سے خطرناک جنگلوں میں شمار ہوتا تھا، اور ان آدم خور شیرنیوں نے کئی شکاریوں کو مار ڈالا تھا، اس لیے میرا وہاں جانا یقینی تھا۔
दौरान सफर नूरदीन ने कई बार मुझसे सुंदरबन के जंगलों के बारे में पूछा, मगर मुझे खुद भी उनके बारे में मुफस्सल तौर पर पता न था। कलकत्ता पहुंचकर हम महकमा जंगलात के दफ्तर में चले गए। वहां के ओहदेदार को जब पता चला कि हम शिकारी हैं और आदमखोर शहरनियों को मारने आए हैं, तो इन्होंने बगैर कोई तफ्तीश किए इजाज़तनामा हमें दे दिया और इस इलाके का नाम भी बता दिया जहां शीर मियां सरगर्म थीं। जैक और चंद फौजियों का कैंप भी इस जगह था। फिर वहीं से हमें सरकारी गाड़ी भी मैसर आ गई, जो कलकत्ता से बारोपुर और वहां से जाला भारी तक हमें छोड़ने आई। गाड़ी का ड्राइवर मकामी शख्स था। वो रास्ते भर हमें उन आदमखोर शहरनियों की कथा सुनाता रहा जो अब तक 47 बंदे, जिनमें शिकारी और फौजी भी शामिल थे, खा चुकी थीं। ताहम हमने उसकी किसी बात का जवाब ना दिया, सिर्फ हूँ हाँ ही करते रहे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये सब बातें दकियानूसी और खुराफात थीं। गाड़ी वाला हमें जालाभारी के रेस्ट हाउस में छोड़कर चला गया, जहां जैक और 5 फौजी रहाइश पजीर थे। हमें देखकर जैक को जैसे नई जिंदगी मिल गई। वो बड़े वालिहाना अंदाज में हमसे मिला। मैंने उसका तारुफ नूरदीन से करवाया। कुछ ही देर बाद दोनों ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों के आशना हूँ। रात का खाना खाने के बाद हम चाय पीने बैठ गए। नूरदीन को चाय से खास रग़बत ना थी, मगर बंगाली मुलाजिम शमन ने चाय इतनी उम्दा बनाई थी कि हम 3-3 कप पी गए। इस दौरान आदमखोर शीर मियों की बात चल पड़ी। किसी को अब तक ये पता नहीं चल सका था कि दोनों शेरनियां आदमखोर कैसे बनी। मकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने पहला इंसानी शिकार जाला भारी से 4 मील दूर एक गांव कानामारी में किया था, जो बिल्कुल दरियाए माला के करीब वाक़े है। वहां की चंद औरतें दरिया पर नहाने गईं। वहां करीब ही एक ब्रिज बना हुआ था जो दरिया की दूसरी तरफ जंगल में जाता था। औरतें नहाकर वापस आ रही थीं, तभी पुल के इख्तिताम पर इन्हें 2 शेर खड़े नजर आए। शेरों का पुल पार करके इस तरफ आना कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगली जानवर इस तरफ आ जाते और शोर मचाकर वापस भाग जाते। शेरों को देखकर औरतें चीखने लगीं, मगर खौफजदा होने के बजाय शेरनियां गजबनाक हो गईं और इनमें से एक ने एक औरत पर झपटकर उसे गर्दन से दबोच लिया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। बाकी औरतें रोती हुई गांव की तरफ भाग गईं। वहां पहुंचकर इन्होंने लोगों को बताया। जब तक लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचते, शीर मियां इसको उठाकर जंगल में ले गई थीं। लोगों को सिर्फ वहां पर खून के कुछ कतरे मिले। शहरनियों ने दूसरी वारदात हाला बुझा दिया के करीब एक और गांव माधापुर में की। माधापुर और काटामारी के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासिला था। यहाँ एक चरवाहा खेतों में अपनी बकरियां चरा रहा था। दोपहर के करीब इसकी बकरियां दरिया से निकलने वाली एक नदी में पानी पीने चली गईं और वो खुद एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसी लम्हे करीबी झाड़ियों से वही शेरनियां नमूदार हुए और चरवाहे पर हमला करके उसे दबोच लिया। इसकी भयानक चीख से सारा इलाका गूंज उठा। बकरियां शेरनियों को देखकर डर गईं और इधर उधर भाग निकलीं। करीब ही एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। चीख की आवाज सुनकर वो फौरन इस तरफ दौड़ा। इसने देखा कि 2 शेर एक दरख्त के नीचे बैठे चरवाहे का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। वो उल्टे कदमों वापस भागा और चरवाहे के घर वालों और काफी लोगों को साथ लेकर वापस आया, तो शेरनियां वहां से जा चुकी थीं। वहां 4 वाहे का सर और 2 बाजू पड़े मिले। उनकी तीसरी वारदात नामारी के बिल्कुल करीब वाक़े देहात देवलबारी में हुई, जहां उन आदमखोर शहरनियों ने 2 आदमियों को एक साथ चीर फाड़ कर खा लिया, जबकि तीसरे को शदीद जख्मी करके खेतों में छोड़ गईं। इस तरह इन आदमखोर शहरनियों की दहशत पूरे इलाके में फैल गई। लोग पहले यही समझते रहे कि ये आम शेर हैं, लेकिन जब इन्होंने मंदिरों के यात्रियों को निशाना बनाना शुरू किया, तब जाकर लोगों को पता चला कि ये शेर नहीं बल्कि शेरनियां हैं।
जाला भारी के शुमाली जानिब, जहां दरियाए मसलन और दरियाए बैत बादरी आपस में मिलते हैं, वहां पूर बादरी नाम का एक बड़ा गांव वाक़े है। उसी गांव से कुछ फासले पर एक कदीम शिव मंदिर है और थोड़े फासले पर ही हरि मंदिर वाक़े है। करब और जवार के तमाम गांवों के लोग इन्हीं दो मंदिरों में पूजा पाठ के लिए आया करते थे। एक सुबह जब काफ़ी तादाद में लोग शिव मंदिर में मौजूद थे और महाबचारी भगवान की आरती की जा रही थी, अचानक शैरनियों ने हमला कर दिया। इस हमले से मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। कुछ अफराद को इन शैरनियों ने पंजों से जख्मी कर दिया, जबकि 2 अफराद को मुंह में दबाकर घसीटते हुई जंगल की तरफ ले गईं। हरि मंदिर पर उनका दूसरा हमला तीसरे दिन हुआ। ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर वाक़े है, जहां पहुंचने के लिए तकरीबन 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यात्री अपने मजहबी फ़राइज़ में मसरूफ़ थे, सब कुछ पुरअमन लग रहा था, लेकिन अचानक एक दहशतनाक लम्हा आन पहुंचा। सीढ़ियां जो नीचे जाने का वाहिद रास्ता थीं, वही रास्ता शैरनियों ने चढ़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, खौफ की लहर दौड़ गई। लोग बदहवासी में सीढ़ियों से गिरने लगे, कई तो वहीं दम तोड़ गए। एक शैरनी ने एक औरत पर झपटने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने तीरशूल उठाया और बहादुरी से उसे भगा दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ये खूनखार शेरनियां अब रोज़ाना शिकार पर निकलने लगी। दरियाए मसलन के किनारे पहाड़ी बस्तियों में उनका खौफ हर तरफ फैलने लगा। जब लोगों ने दरवाजे मजबूत कर लिए, तो ये भी चालाकी करने लगी। चुपके से आकर जो भी हाथ लगता, उसे झुंझोड़ कर रख देती। ऐसा ही एक वाक़या शिव मंदिर के करीब बस्ती मोनागिरी में पेश आया। 100 घरों पर मुश्तमिल एक खुशहाल गांव। लेकिन जब शैरनियों की दहशत वहां पहुंची, तो वो खुशहाली भी लरज़ने लगी। लोगों ने रातों को पहरा देना शुरू कर दिया। सूरज ढलते ही लोग घरों में घुस जाते। अपने माल मवेशियों की इन्हें इतनी फिक्र ना थी, जितनी अपनी जिंदगी की थी, क्योंकि आदमखोर शैरनियों ने अब तक इंसानों का ही शिकार किया था। यूं इन्होंने दरियाए मसलन के किनारे किनारे 200 मुरब्बा मैल में अपनी दहशत के साथ वहशत भी बरपाई हुई थी। हर रोज़ किसी ना किसी को अपना शिकार बनाकर इन्होंने अब तक लातादाद अफराद को लोगों को हलाक कर दिया था। वो इस कदर निडर और बेबाक हो चुकी थीं कि दिन के उजाले में भी हमला करने से दरेग नहीं करती थीं। यूं उनका चर्चा सरकार तक पहुंचा और अखबारों में उनकी खबरें आने लगें। इधर हुकूमत ने बहुत से नामवर और तरबियत याफ्ता शिकारियों से अपील की कि वो उन आदमखोर शैरनियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। ये ऐलान सुनते ही बहुत से शिकारियों ने इधर का रुख किया, मगर वो मकार शेरनियां किसी के हाथ तो ना आई, उल्टा कई शिकारियों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। यूं मजीद शिकारियों ने इस तरफ आना बंद कर दिया और लोग जो पहले ही दहशत ज़दा थे, अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी करने लगे। इस तरह बहुत से गांव खाली होते गए। हम जब यहाँ आए तो हर तरफ सोग छाया हुआ था। मुतअद्दिद देहातों और बस्तियों के लोग घर बार छोड़कर जा चुके थे और जो मौजूद थे वो इतने खौफज़दा थे जैसे अभी मौत उनको आकर ले जाएगी। मैंने अपने कई बारान शैरनियों को मारने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। इन आदमखोर शैरनियों से मेरी पहली मुठभीड़ हरि मंदिर पर हुई थी। इस दिन मैंने उनको वाज़ेह तौर पर देखा था। मुझे किसी ने इत्तला दी कि हरि मंदिर पर शैरनियों ने हमला कर दिया है। मैं फौरन ही भागम भाग वहां पहुंचा। वहां सिर्फ चंद पुजारी बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, यहाँ आदमखोर शैरनियों ने हमला किया था, कहाँ हैं वो? वो बोले, आपको हमने ही ये पैगाम भेजा था। हमने यहाँ उन शैरनियों की बस झलक देखी थी। मैंने उनसे उस जगह के बारे में पूछा जहाँ इन्होंने शैरनियों को देखा था। वो बोले, हमने सीढ़ियों की तरफ इन्हें खड़े देखा था, मगर हमारे शोर शराबा करने पर वो फरार हो गईं।
चूंकि हरि मंदिर बुलंद चोटी पर वाक़ था, जिस पर चढ़ने का वाहिद रास्ता वो सीढ़ियां थीं, इसलिए वहां से उन शैरनियों को मारना आसान था, बशर्तीका वो यहाँ मौजूद हूँ और मंदिर पर चढ़ने की कोशिश करें। मैंने वहीं खड़े खड़े अतराफ का जायजा लिया, मगर नीचे घनी झाड़ियों की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही मेरी नज़र सबसे निचली सीढ़ी के साथ उगी झाड़ियों पर पड़ी, तो वहां मुझे एक शैरनी की झलक नजर आई, जो अपनी अंगारा आंखों से झाड़ियों की आड़ में से मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं भी बगौर उसकी तरफ देखने लगा, तब वो झाड़ी से निकलकर सीढ़ी पर आ खड़ी हुई। मुझे यकीन हो गया कि ये वही आदमखोर शैरनी है। मैंने फौरन बंदूक सीधी की और इसे निशाने पर ले लिया, मगर वो मकार समझ गई कि मैं शिकारी हूँ। इससे पहले कि मैं गोली चलाता, वो मुड़ी और जख्म भरती हुई वहां से हवा हो गई, जबकि मेरी चलाई हुई गोली महज झाड़ियों में घूम कर रह गई। इसके बाद मेरा इनसे कभी सामना ना हो सका, मगर इंसानी हलाकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। तब मैंने सारी सूरत हाल मजिस्ट्रेट साहब को लिखकर भेज दी। इन्होंने कुछ फौजियों को यहाँ भेज दिया, जिनमें से कुछ तो अपनी नातजर्बाकारी के बाइस खौफजदा होकर वापस चले गए, और जो मौजूद हैं, इन्हें भी इस शर्त पर रोका हुआ है कि हमारे कुछ शिकारी आ रहे हैं। वो जैसे ही आएंगे तुम चले जाना। हो सकता है वो कल सुबह यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कोई भी यहाँ मजीद रुकना नहीं चाहता। मैंने पूरी तवज्जो से जैक से तफसील सुनी। उसके मुताबिक शैरनियों का इलाका 100 मुरब्बा मील तक मुहित था, और वो अब तक बेशुमार इंसानों के खून से सैराब हो चुकी थी। ये बड़ी अनोखी बात थी कि इन्होंने अब तक किसी जानवर को हलाक नहीं किया था। ये बड़ा अजीब मुअम्मा था। कोई भी दरिंदा जब आदमखोर बन जाए, चाहे शेर, तेंदुआ या चीता, इसकी आदमखोरी की वजह इंसान ही होता है। किसी अनाड़ी शिकारी की बंदूक से किए गए नाकाम वार के बाद जब दरिंदे जख्मी होकर कुदरती शिकार को मारने की सकत को खो देते हैं, तो इंसान पर ही हमला करते हैं। इंसान चूंकि गैर मुसल्लाह होने की वजह से अपना दिफा करने से माजूर होता है, इसलिए जल्द शिकार हो जाता है। दूसरी सूरत ये भी होती है कि किसी बीमारी से मरने वाले अफराद की लाशें जिलाए या दफन किए बगैर जंगल में फेंक दी जाती हैं, जिन्हें खाकर दरिंदे आदमखोरी पर माइल हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी गोश्त और खून का जायका ही कुछ ऐसा लजीज होता है जो आदमखोरी की लत लगा देता है। लेकिन बाज़ औक़ात दरिंदों के आदमखोर बनने की वजह बिल्कुल भी मालूम नहीं हो पाती। ऐसा ही कुछ इन शैरनियों के साथ भी था। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।